Audio Jungle. न्यूज़ पंजाब क्रांति देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਵਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਨਬੀਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੀਰੋ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀਰੋ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਰਟਸ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੇਬਰ ਹੈ ਇਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਪਰਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮ ਹੋਵੇ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 25 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਪਰਸਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇਬਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਵਰ ਰੋਡ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतीश कुमार दुबे जी है जी। सतीश कुमार दुबे जी। दुबे जी ये जो धरना है आपने जैसे हमें बताया कि पिछले 3 महीने से लगातार चल रहा है। हाँ जी। तो इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण सर ये है कि जो है इन्होंने पहले 65 आदमी 5 जुलाई 2021 को निकाल दिया और 25 साल उनकी सर्विस हो गई थी। बोले कि 25 साल पे हम रिटायरमेंट ही करेंगे। हम इसको काला कानून मानते हैं। ये रिटायरमेंट ही नहीं कर सकते क्योंकि 58 साल की रिटायरमेंट ही होती है जी। और इन्होंने जब मुंजाल कास्टिंग पहले इसकी फैक्ट्री का नाम था इन्होंने लिख के दिया हुआ है। इस टाइम जो प्रेजेंट में है सत्येंद्र शर्मा जी और सबीन वर्मा जी उन्होंने लिख के दिया है कि जो भी मुंजाल कास्टिंग के बेनिफिट हैं ठीक आप उसी प्रकार आपको मिलेगा, कोई चेंज पना नहीं होगा। माफ़ करना मैं आपको बीच में कट कर रहा हूँ। ये जो आप 2 पर्सन का नाम ले रहे हो ये क्या मैनेजमेंट के बंदे हैं? हाँ जी, एक प्लांट हेड है, एक डीजे में 4 हेड है। यहाँ पे ऑनर नहीं बैठते? नहीं जी, मालिक नहीं बैठते, सिर्फ मैनेजमेंट है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। और जो आप जिस कंपनी का नाम ले रहे हो मुंजाल, इस टाइम इसका जो नाम है वो है सनवीर। हाँ जी। तो मुंजाल कंपनी कैसे पड़ा हुआ बताइए जरा। सर मुंजाल इसलिए पड़ा कि हीरो ग्रुप सारे मुंजाल मालिक की है
पहले अशोक मुंजाल जी थे, ओपी मुंजाल जी थे, सुमन मुंजाल जी थे, पंकज मुंजाल जी थे। इस टाइम पंकज मुंजाल हीरो साइकिल के जो हैं चेयरमैन हैं जी। ओपी मुंजाल तो ख़त्म हो चुके हैं। ये सारे भाई हैं। इसकी वजह से मुंजाल के नाम से इन्होंने अपनी फैक्ट्री का नाम रखा था। अभी इसका फैक्ट्री का नाम जो है वो है सनबीम। हाँ जी, सनबीम का पूरा नाम क्या है? सनबीम लाइट वेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। सनबीम लाइटवेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी। तो अभी आप जो 3 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हो, आप प्रदर्शन कर रहे हो, आपकी वजह तो हमने जान ली, लेकिन उन्होंने कारण नहीं बताया कि आपको क्यों निकाला जा रहा है। सर वो कारण ये है कि हम लोग यूनियन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मेन कारण यही है कि ये लोग यूनियन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जो इनके काले कारनामे हैं वो नहीं कर पाएंगे, और इनको जो है हम लोगों को सब लिखित देना पड़ेगा। लिखित रूप से देने के कारण ये जो है ऐसे कर रहे हैं कि हम वर्कर निकाल देंगे, फलाना कर देंगे, हम रखेंगे नहीं, फला धमकियाँ दे रहे हैं जी। कई प्रकार के जो है आरोप लगाए हुए हैं। 5 आदमियों को हमारे सस्पेंड किया हुआ है, 6 आदमियों को हमारे गुजरात हलोल प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया। हम चौथे तबके के कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, जो कि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ। मैनेजमेंट का यही कहना है कि आपके जो मेन मेंबर थे उनमें से 5 बंदे हमने गुजरात शिफ्ट कर दिए। हाँ जी, गुजरात को ट्रांसफर कर दिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो काम करते थे लेबर का। तो लेबर की ट्रांसफर कहाँ से होती है? वो फर होती नहीं है। इन्होंने जो भी कानून बनाया सब काले कानून बनाए हैं, और पैसे के दम पे पुलिसकर्मी भी इनके साथ में हैं, और ये लोग भी जो है ज़बरदस्ती करवा रहे हैं हम लोगों के साथ। मार पिटाई भी कराते हैं। गुंडे मौजूद कराया हुआ है फैक्ट्रियों में। बाउंसर खड़े किए हुए हैं 25-30। जब इन्होंने 5 जुलाई को निकाला था उस टाइम भी इन्होंने 2 गाड़ी बस की पुलिस भर के ले आए थे, और बाउंसर भी 25 ले आए थे, 40 ले आए थे। ऐसे बाउंसरों निकाल ले आके कोई हमको जो है प्रूफ नहीं दिया कि हम 3 महीने आपको नोटिस देते हैं, हम आपको निकाल देंगे 3 महीने बाद। इन्होंने एक बैग हम लोगों को कोई बगैर प्रूफ दिए निकाल दिए। आपने जो 5 जुलाई की बात की है, तो आपने कोई केस वगैरह भी फैक्ट्री के ऊपर किया हुआ? हाँ जी, हमने जो है फैक्ट्री के ऊपर जो है केस किया हुआ है कि हमारे जो बंदे 25 साल के निकाले हैं, वो हमारा केस पहले एलसी के लिए चलता था। अब चंडीगढ़ जो है मतलब चल रहा है जनरल पंजाब जनरल सेक्रेटरी के पास। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने डीसी साहब को धरना दिया था, हमने जो है इनको ज्ञापन भी दिया था, 1 महीने हो गया करीब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आपका जो केस है वो लुधियाना में लगा हुआ है या हाई कोर्ट में लगा हुआ है? जो मशीन शॉप बंद करने का अपील किया था इन्होंने, वो हमारा हाई कोर्ट में लगा हुआ है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन का जो 25 साल का है वो पंजाब जनरल सेक्रेटरी के पास है। पंजाब जनरल सेक्रेटरी के पास। हाँ, रजिस्ट्रेशन हम लोगों को मजबूर होकर करना पड़ा, क्योंकि ये 1 जनवरी को उन्होंने एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया, जिसके तहत हम लोगों को पता चला कि 25 साल वाले के रोटी छीनी जाएगी। तो उस तरह जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों को ज़रूरी होके मजदूर यूनियन का सहारा लेना पड़ा। और हमारा सबका कभी मकसद ऐसा नहीं था कि कंपनी में कोई यूनियन हो, कोई कुछ हो, हम लोग रोड पे आए, ऐसा कोई मकसद नहीं। कंपनी का विकास हम लोग 25 साल से, आज हम भी 25 साल से नौकरी करते हुए गए। 30 तारीख को हमको भी रिटायर कर दिया। अब हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं सारे, स्टैंडिंग नहीं है हो पाए हैं। अब वो कहाँ जाएंगे, हम लोग का किस देश में नौकरी करेंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ नए सिरे से 8,000 10,000 इस नौकरी मिलेगी। हमने सारी नौकरी अरे उम्र यहाँ पे निकाल दिया। अब वो स्टैंडिंग लेटर झूठा बना के 6 महीने में, जबकि स्टैंडिंग लेटर होता है जब कंपनी बनती है, एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है हमको। ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया कि क्या है क्या नहीं है। हमने आपके कहने का मतलब जो आपने सनबीम ज्वाइन की है मुंजाल के बाद, तो उसका आपके पास कोई ज्वाइनिंग लेटर इन्होंने दिया ही नहीं? बस हमारे पास एक आइडेंटिटी कार्ड मिला हुआ, वही मिला हो। उसमें कोई नियम कानून ऐसा नहीं मिला कि आपको ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा, ठीक है। और जो हम यूनियन की बात करते हैं कि यूनियन कर रहे हैं इसलिए हम ऐसा उठा रहे हैं कदम, वो हमारा सबका मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने हमको मजबूर कर दिया वो स्टैंडिंग लेटर बना के। तो हम मुंजाल के बाद जैसे सनबीम इन्होंने अपनी फैक्ट्री का नाम या कुछ भी चेंज किया, अपने प्रोडक्ट का नाम इन्होंने चेंज कर दिया, तो उसके लिए आपको रिटर्न में कुछ दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया जी। उन्होंने कुछ रिटर्न में नहीं दिया है, और इन्होंने बोला भी था कि हम ज्वाइनिंग लेटर आपको देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, क्योंकि इनके मन में काला है, और ये काले तरीके से हम लोगों को बाहर करना चाहते हैं, हम लोगों को नौकरी से निकालना चाहते हैं, और हम ये होने नहीं देंगे सर। हम भूखे मर जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। हमारा एक भाई नहर में कूद के जान दे दिया सर, ये नौकरी के कारण की जो है उसके ऊपर प्रेशर डालते थे कि जो है आप ऐसे करो ऐसे करो।
को हम लोगों को मजबूर किया, हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। हम लोग करें तो क्या करें? अगर यूनियन का सहारा न लें तो बताओ किसके पास जाएं? हम लोग दौड़ तो रहे हैं शासन के पास, प्रशासन के पास, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप ही बताइए हम लोग क्या करें? और सर इनका मकसद शुरू से जहाँ भी गए, अभी ये रोकमान से ये मैनेजमेंट आई है, पहले एक आया, फिर 2 आया, 3 आया, इन्होंने सारा मैनेजमेंट अपना इकट्ठा कर लिया। जब ये अपने पाँव मजबूत किया तो कंपनी में यही करने जाते हैं, वहाँ किसी तरह लोगों को भड़का के, मजदूर को भड़का के यूनियन करा देते हैं। आज रोकमैन में क्या स्थिति पैदा करके आए थे, फिर यहाँ पे आगे वही स्थिति पैदा करके पैसा कमा के मालिकों का पैसा चूस के, जो हमारे मजदूर भाई कमा के फैक्ट्री को ऊपर ले जाते, वो पैसा चूस के बस यहाँ हुआ काम निकल जाएगा, फिर ये दूसरी फैक्ट्री ज्वाइन करेंगे, वहाँ बंदे भड़काएंगे अपने टीम लेके, वहाँ का दूसरेंगे। बस इनका काम है हर फैक्ट्री में गंदगी फैलाना और कोई मकसद नहीं है, और अपनी जेबें भरना, और हम कुछ नहीं दुबे जी, मैं आपके हाथ में कुछ देख रहा हूँ, ये आप दिखाएंगे ज़रा? सर हमने पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं कि जो हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, ये हमने सर ज्ञापन दिया था डीसी साहब को। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀ ਡੇਟ ਪਾ ਕੇ 65 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर आज तक डीसी साहब, प्रशासन, कोई एएलसी यहाँ का लुधियाने का कोई सुनवाई नहीं किया जी। हम लोग आपको बता दें 90 दिनों से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग भूखे प्यासे, कोई रोटी ले आके देता है तो हम लोग खाते हैं। हम लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग ऐसे इतने बड़े आदमियों के साथ लड़ सकें। हम लोग तो मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं। हम लोग मेहनत मजदूरी करके फैक्ट्री को आगे बढ़ाते हैं, और ये लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तब मजदूरों को कुचलना शुरू कर देते हैं। और क्या है आपके पास? सर इन्होंने, जैसा आपको ज्ञात होगा कि मुंजाल कास्टिंग से जब हमको सनबीम में ट्रांसफ़र किया था, तब इन्होंने लिख के दिया था, जो इस टाइम प्रेजेंट हैं प्लांट हेड और जो है HR हेड DGM, उन्होंने लिख के दिया था कि जो बेनिफिट आपका है ठीक उसी प्रकार मिलेगा। और आज तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सारा काम उल्टा हो रहा है जी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुंजाल कास्टिंग टू सनबीम ऑटो प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 4 लुधियाना विल रिमेन सेम एंड देयर विल बी नो चेंजेस इन द बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर्ड एम्प्लॉयज, राइट, ये ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सारी हिदायतें लिखी गई हैं कि जब आप मुंजाल कंपनी से सनबीम की तरफ आ रहे हो तो उसमें सारी जो हिदायतें हैं या जो भी फैसिलिटी हैं वो सारी मुंजाल वाली मिलेंगी। लेकिन सर इसमें भी जो इन्होंने लिखा है, साइन करके दिया है, फिर भी हमारे जो है आधी बातें माने हैं, आधी बातें नहीं माने हैं। ये जो आप साइन दिखा रहे हो ये मैनेजमेंट के साइन है? हाँ जी बिल्कुल, सारे मैनेजमेंट के साइन हैं, और इसमें हमारे कर्मचारियों के भी साइन हैं। जो हम अंदर 7-8 आदमी बात करने जाते थे, हम लोग लिखित रूप से लेते थे, और इन्होंने जब समझ गए कि हम फंस जाएंगे, तब इन्होंने हम लोगों के साथ मीटिंग करना बंद कर दिया। तब हम मजबूर होकर यूनियन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आतुर हुए। जब आपकी वर्किंग मुंजाल में थी तब तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि 25 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा? ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जी। ये सर इन्होंने अपने आप 18 जनवरी 2021 को काले कानून बनाया है, वो भी लेबर कमिश्नर चंडीगढ़ को और पंजाब जनरल सेक्रेटरी चंडीगढ़ को पैसे खिला के बनाया। तो मुंजाल से जब सनबीम हुई तो ये सारी हिदायतें चेंज कर दी उन्होंने? हाँ जी, जब कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर बनता है जी, तो हमारे जो कमेटी के सदस्य होते हैं वो जाके साइन करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये चुपके से हमारे 3 बंदे लेके गए, जो कि मैनेजमेंट के बंदे थे, वो उनको पैसे दिया गया, 50-50 हज़ार, लाख रुपए दिया गया, और उनको ले जाके साइन कराया गया। बोला गया कि ये कुछ नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी है, आप यहाँ साइन कर दो। उन बेचारों को पता नहीं था, हम लोग इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं, उन लोगों ने साइन कर दिया। अच्छा चलो साइन कर दिया, तो आगे फैक्ट्री से उनको पूछना चाहिए कि हम साइन करने जा रहे हैं। हमारे इंस्पेक्टर आना चाहिए, यहाँ का जो लेबर इंस्पेक्टर है, जो ALC असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको आके पूछना चाहिए कि भाई स्टैंडिंग ऑर्डर बना है, आपको मंजूर है कि नहीं मंजूर है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो प्रोसीजर है कोई भी फॉलो नहीं किया इन्होंने। आपने मुझे बताया था कि कोर्ट में आपने केस लगाया हो, उसका कोई रिटर्न में पड़ा है कुछ आपके पास?
सर जो जज की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आए हैं, उसमें क्या लिखा गया? उसमें यही लिखा है कि जब तक आपकी 11/11 की तारीख दी है उन्होंने, 30 तारीख को सुनवाई थी इसी पिछले महीने की। उन्होंने बोला कि जो जैसा काम चल रहा है ठीक उसी प्रकार चलेगा यथास्थिति, कि मतलब ना आप वर्कर निकाल सकते हो, ना आप डिपार्ट बंद कर सकते हो, ना आप काम बंद करवा सकते हो। लेकिन इन्होंने सारा उल्लंघन किया, काम भी बंद करवाया। हमारे कर्मचारियों को 99 आदमियों को इन्होंने 1 तारीख को कार्ड बंद कर दिया, और उसके बाद जो है डिपार्ट भी चोरी चुप्पे चलवा रहे हैं। बाहर से बंदे पकड़ ला के, स्टेशनों से बंदे पकड़ के ला के डाले में, और जो है कई तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ मिलके बंदे पहुंचवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के साथ धक्केशाही कर रहे हैं जी। ये मैं कुछ देख रहा जिथे 3 ਆਉਂਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11/11 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 11 ਤਰੀਕ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋर्ट ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ भी ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इन्होंने कोर्ट का घोर उल्लंघन किया है जी। ये बोलते हैं हम जो पंजाब जनरल सेक्रेटरी, जो कि 2 जुलाई को पंजाब जनरल सेक्रेटरी के पास केस चल रहा था, उस टाइम बंद करने का इनको जो है वो दिया था, तो अब हमने उसको चैलेंज करके हाई कोर्ट ले गए। इन्होंने पंजाब जनरल सेक्रेटरी का कहना मान लिया और हाई कोर्ट की उल्लंघना कर दिया। ये सरासर गलत है जी। आप देख सकते हो, हमने आपको सारा प्रूफ दिखाया है। आपने मुझे ये भी बताया था कि आपके कुछ 4-5 बंदे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया है। हाँ जी, तो वो मैं कुछ प्रूफ देखना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखो जी, इन्होंने सरासर ऐसी गालियाँ इसमें लिखी हुई है कि जो कि बंदा सोचेगा 10 बार सोचेगा कि हम ऐसी गालियाँ दें कि न दें। इन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना के हमारे 5 मजदूरों को सस्पेंड कर दिया है, आप देख भी सकते हो। और एक आपको पॉइंट वाली बात बता देते हैं, इसमें लिखा गया है कि हमने 5 जुलाई को हमको सस्पेंड किया गया है, और दूसरे में एक सुखराम शर्मा नाम का हमारा व्यक्ति है जो जिसको सस्पेंड किया गया है 6 तारीख को। उसमें भी इन्होंने लिखा है कि सतीश दुबे अंदर आके उसके साथ इकट्ठे होकर गाली गलौज किया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपको अगर एक दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया है, हाँ जी, तो दूसरे दिन आप फैक्ट्री में अंदर दाखिल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो फिर आप अंदर दाखिल होने के बाद कैसे गाली निकाल सकते हो? यही तो आप तो दाखिल ही नहीं हो सकते। हम दाखिल ही नहीं हो सकते, तो हम तो यहाँ पे सब कुछ फेक लिखा हुआ है। हाँ जी, फेक है, सारा गलत है ये। तो ये भी आपके साथ है इस कमेटी के जो आपका आंदोलन चल रहा है, कमेटी के मेंबर हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? रामकिरत तिवारी। रामकिरत तिवारी जी। रामकिरत तिवारी जी, जैसे कि दुबे जी ने बताया कि ये पिछले 90 दिनों से आंदोलन चल रहा है, तो अभी तक इसका कोई सोल्यूशन निकला? इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? जो यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो भी हम जिसके पास जाते हैं सरकारी कर्मचारियों के पास, उनको खरीद लेते हैं, वो हमारी बातों को सुनते नहीं हैं। अब इसमें गवर्नमेंट को या किसी को आगे हमारा हल भला करवाना चाहिए। गरीब जहाँ जाता है उसकी सुनवाई नहीं होती है। ये बताइए, जब हम इस प्लांट में आए तो इनके पास 1 प्लांट था और 3 मशीनें थी, और हम तेल वाली भट्टियों से चलाते थे। चला के हमारी शरीर हर जितने भी पुराने लड़के हैं 27 साल 28 साल, उनकी हर बंदों को बीमारियाँ से ग्रस्त हैं, और किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के हाथ नहीं उठते। मेरी या देख लो, ये बाजू मेरी यहाँ से ऊपर नहीं जाती है। 27 साल हो, मेरे को चोट लगी है। कितना टाइम हो गया इस फैक्ट्री में? मेरे को 27 साल नौकरी करते हो गया, और आज तक मेरा कोई एक कंप्लेन भी नहीं है कि हमने किसी के साथ बदतमीजी की या लड़ाई किया हुआ है। लेकिन फिर भी बिना बताए हुए ये सबको बाहर निकाल रहे हैं, धक्का कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी दुबे जी ने हमें दिखाया, वहाँ पे कुछ गंदी गालियाँ भी मेंशन की हुई हैं, तो वो क्या आप उस चीज़ को किस तरफ मतलब लेके चलोगे, या आपके जितने भी मेंबर थे उनमें से कुछ मेंबर ने ये काम किया है या नहीं किया? हमारा एक मेंबर का अगर प्रूफ दे देते हैं तो हम जो कहेंगे मानने के लिए तैयार हैं। एक भी प्रूफ अगर गाली दिया, तो आजकल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इनके पास रिकॉर्डिंग होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। जब हमारे बंदे ने सर के अलावा कोई बात ही नहीं किया है, तो ये हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये वर्कर को गधा समझते हैं और गधे वाला काम करवाना चाहते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप तो एज ए लेबर हो, तो लेबर मैनेजमेंट को कैसी गाली दे सकती है? नहीं दे, गाली देने की तो बात छोड़ो सर, हम तो वो भी नहीं कह सकते किसी को। हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं सिखाया है कि हम किसी को वो कह के और किसके हम सर करके बुलाते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं। जहाँ भी हमारी रिकॉर्डिंग है या हमारे बंदों की एक भी दिखा दें, ये प्रूफ दिखा दें, हम इनकी बातों को मान लेंगे। इनका झूठ बोलना काम है। तो हमारी जनता को अभी तक थोड़ा सा ये भी क्लियर नहीं हो कि इनको रीज़न क्या था इनका आपको निकालने का। 150 से प्लस बंदा आपका निकाला गया है, मेन कारण क्या था? और ऊपर जो आपने दुबे जी ने भी बताया कि ऊपर से परमिशन ली गई है बंदों को निकालने की या लेबर को निकालने की, उसका रीज़न क्या बताया? इनका रीज़न ये है सर कि हम जो पुराने बंदे हैं
हम पुराने बंदे ईमानदारी से काम करते हैं और ये हमसे उल्टे सीधे काम करवाना चाहते हैं। अगर मान लो मशीन कोई ख़राब है तो मशीन की अगर रिपेयरिंग नहीं करवाएंगे तो मशीन कैसे चलेगी। ये रिपेयरिंग नहीं करवाते, कोई काम नहीं करवाना चाहते हैं और हमसे कहते हैं कि ये करो वो करो, फिर भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारे पर झूठा आरोप लगाते हैं। क्योंकि ये जितनी मेजरमेंट आई है इनका आप पिछला रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा। और हमारा भी जितने लड़कों के ऊपर आरोप लगाया है हमारा भी पिछला रिकॉर्ड देख लिया जाए कि हमने आज तक इतनी उम्र में किसको गाली दिया या किसको लड़ाई किया या हमारे नाम कहाँ पे भाई आ रहा है। इनके नाम ये जेल काट काट के लोग आए हैं राकमैन से, चोरियाँ कर करके आए हुए हैं मेजरमेंट, और यहाँ भी आगे वही काम कर रहे हैं। हम अपनी फैक्ट्री को मंदिर मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हम जब यहाँ आए थे तो हमको दाढ़ी मोछ भी नहीं आई थी और आज हम बुढ़े हुए, इसको फैक्ट्री को हम बहुत सम्मान इज्जत देते हैं। हमारे घर में रोटियां चलती हैं और हमारे बच्चे खाते हैं, हम इसका नमक खाया है, लेकिन ये हमको धक्का मार के बाहर कर रहे हैं। इसके मालिक जो सीनियर हैं आगे इसको फैसला करवाना चाहिए, मालिक को तो बताते ही नहीं है और फैक्ट्री को लूट के खा रहे हैं। आपके कहने का ये मतलब है कि इस फैक्ट्री के जो ऑनर हैं, हमने भी इस फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा सर्च किया था, तो 3 ऑनर हैं इस फैक्ट्री के, तो ऑनर तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची है, उनको पता ही नहीं है। ओनर तो ये सारा मैनेजमेंट का खेल है, ये नीचे नीचे मैनेजमेंट का खेल है। अगर कोई ऐसी बात है तो ओनर सामने आए, अगर हमारी गलती है तो हमको बताएं, हम उनकी गलती को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये अपनी बात को बताते हैं, हमारी बात को मालिकों को ऑनर को कौन बताएगा। हमारी बात तो आए ना मालिक पूछे, भाई तुम इतने साल से काम किए, तुमने ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहे हो। हम मानने के लिए उसकी बात तैयार हैं, लेकिन एक बार मालिक हमको बिठाए, हम नहीं मानते हैं तो हमारे साथ जो मर्जी एक्शन ले, लेकिन मालिक को बुलाए, जिसने पैसा लगाया है उसको दर्द हो रहा है। इनको क्या है तो फैक्ट्री को लूट मार के खा के चले जाएंगे, अनाथ कौन होगा। हम गरीब आदमी, हमको नौकरियां नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। अगर बताइए, हम 27 साल इस फैक्ट्री को खून पसीना दिया, आज 3 महीने से हम पार्कों में भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। यही हमारे साथ सलूक होना चाहिए कि हमको एक पैसा ना दिया जाए, हमको धक्का मार के बाहर निकाला जाए। हमारे बच्चे, हमारा कैसे गुजारा हो रहा है, तो इसको ऑनर को आगे हमारा फैसला करना चाहिए सर। हमारे चैनल को थोड़ा सा ये भी पता चला कि अंदर कोई मशीन शॉप का डिपार्टमेंट है, तो मशीन शॉप का डिपार्टमेंट इन्होंने लो बजट में दिखा के, मतलब इन्होंने जो अपनी बैलेंस शीट निकाली है मशीन शॉप की, वहाँ पे इन्होंने शो किया है कि हमें बहुत ज़्यादा घाटा पड़ रहा है, इसलिए हम मशीन शॉप के ऊपर जितने भी बंदे काम कर रहे हैं वो सारे निकाल रहे हैं। तो ये मेन रीज़न उन्होंने दिया है कि बंदे निकालने का मेन कारण ये है कि कंपनी को या इस फैक्ट्री को घाटा पड़ रहा है। ये क्या सही है? कंपनी का जो 3 साल का बैलेंस शीट है निकाल ले, और कोई कंपनी का एक डिपार्टमेंट का नहीं रिकॉर्ड निकलता है रिकॉर्ड तो पूरी फैक्ट्री का निकलता है। हम एक कास्टिंग को बनाते हैं तो वो कम से कम पूरे हमारे पास 9-10 डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट घूम के जाता है, तो हर डिपार्ट काम करता है। और ये बताइए सर, मशीन शॉप में आपने आज से 20 साल पहले उस कास्टिंग का रेट लगाया हुआ है और उस रेट से आप एक पैसा फालतू नहीं दे रहे हो, तो घाटा कहाँ से हो रहा है। रेट तो आपका लगाया है, आपकी मैनेजमेंट का लगाया हुआ है, और 8 घंटे काम करने के बाद बंदों को दिहाड़ी नहीं पूरा होती है, वो 12-12 घंटा 14-14 घंटा करके काम जाते हैं, तो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाते हैं। अगर 8 घंटा वो काम करेंगे तो उनकी 10,000 रुपये सैलरी भी नहीं बनती है, तो कहाँ से घाटा हो गया। जो रेट आपने लगाया, आपने हर चीज़ को चॉइस किया और आप ही कहते घाटा हो गया, तो ये कैसे हो गया सर, आप बताइए। अगर मैं घाटे की बात करूँ, आपको बोनस भी यहाँ पे मिलता होगा? हाँ, बोनस भी बनता है। लास्ट बोनस आपका कब आया था? लास्ट बोनस अभी जुलाई में आया था। जुलाई में आपका बोनस आया, कितना बोनस मिलता है आपको? 20%। लेकिन सरकारी रेट तो कुछ और है, 8 पॉइंट कुछ है। हाँ, सरकारी रेट तो 8 पॉइंट समथिंग है ना कुछ? हाँ जी, हाँ जी। तो 20% आपको अगर कंपनी प्रॉफिट में है तभी दे रही है ना? वो सर, इनका बैलेंस शीट निकाल के देख लें कितना इनको प्रॉफिट है और कितनी लागत है। हम लोग, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको लास्ट जुलाई में 20% आपको बोनस दे रही है कंपनी, तो कंपनी घाटे में कहाँ पे है? घाटे में तो है ही नहीं सारे, ये तो घाटे में कंपनी को ले जाना चाहते हैं। आप इनके 5 प्लांट हैं, 5-6 प्लांट हैं, उनकी प्रोडक्शन और उनकी सेलिंग से ज़्यादा हम इस छोटी सी प्लांट को उसका डबल प्रोडक्शन दे रहे हैं। जिस डाई का गुड़गांव में 1 नंबर प्लांट में 200 कास्टिंग निकलता है, यहाँ हम 450 कास्टिंग उसका देते हैं, और तनख्वाह वहाँ पे 35 से 50 हज़ार रुपये वर्कर की है, ऑपरेटरों की, और यहाँ हम 15 हज़ार रुपये लेते हैं। तो घाटा कैसे हो गया सर, आप बताइए। 27 साल में आप यहाँ पे फैक्ट्री में काम कर रहे हो, 27 साल से, तो आपकी कितनी तनख्वाह है? हमारी 16,010 रुपये बेसिक है। दुबे जी, आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? सर हमको 12 साल काम करते हो गया। अभी हमारी जो बेसिक है 11,000 है। जैसा आपने पूछा कि जो है मतलब घाटा कहाँ से, तो अगर मान लीजिए घाटा है, इनको 3 साल से घाटा आ रहा है, आप 3 साल का बैलेंस शीट इन्होंने पेश किया है, तो इन्होंने जो है हमको 20% बोनस कैसे दे दिया 3 साल में? जो आप लास्ट जुलाई में बोल रहे हो, हाँ जी। 2021 में जुलाई में 20% आपका बोनस देने के बावजूद ये कंपनी बोल रही है कि हम घाटे में। हाँ जी, हाँ जी।
तो अगर घाटे में होती है तो 8-33 बोनस दिया जाता है, और ये 3 साल से हम लोगों को 20% बोनस देते आ रहे हैं। तो इसके मतलब ये कंपनी को और नीचे गिराना चाहते हैं। अगर घाटा था तो ये हमारे साथ बैठ के बात करते और हमसे कहते कि भाई हमारा घाटा है, हम इतना नहीं देंगे, हम इतना देंगे, हम मानने के लिए तैयार थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मालिकों को भी अंधेरे में रखा और हमारे कर्मचारियों को भी अंधेरे में रखा है। आपका आगे का प्लान क्या है जी? आगे का प्लान हमारा है कि जो यहाँ के ओनर हैं, सीनियर हैं, वो आगे हमारे से बात करें और हमें अंदर लें। हम हमारी कोई चीज़ की मांग नहीं है। अगर कंपनी कहती है कि हमको घाटा हुआ है, ओनर आगे दिखा दें और सच्चाई से बोल दें कि घाटा हमको लगा है और प्रूफ हो जाता है, तो हम जितना, जब तक इनका घाटा नहीं पूरा होता, हम फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं। क्यों? फैक्ट्री हमारी माँ है और फैक्ट्री को हम कभी डूबने नहीं देंगे। और फैक्ट्री में आज तक 3 महीना हो गया हम भूखे मर रहे हैं। बता दें कि हमने कहीं ईंटा मारा, पत्थर मारा या किसी को कोई कुछ कहा है? हम फैक्ट्री की रात दिन बैठ के यहाँ सुरक्षा कर रहे हैं। अभी 2 दिन छुट्टी हुई, जो झगड़ा लड़ाया, जो लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, वो लोग 2 दिन जाके अपने घर में सोए और हम 2 दिन से रोड पे उस फैक्ट्री को रखा रहे हैं कि हमारे के नाम के ऊपर आके कोई ईंट ना मार दे, कोई पत्थर ना मार दे, कोई आग जनी ना कर दे। हमारी फैक्ट्री है, हमारा सारा जीवन इससे बीता है। हमने इसकी सुरक्षा करना है और इसको बचाना है। जो मर्जी हो जाए, हमने 3 मशीनों से 8-8 प्लांट, 10-10 प्लांट खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे लिए कोई मालिक सोचने के लिए तैयार नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मजदूर एकदम, मजदूर एकदम, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਸਨ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 100 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜੀ? यही थाना अपना 6 नंबर थाना 6 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ? नहीं नहीं, कोई हुनरबाजी नहीं है, बहुत शांत ढंग नाल हो रहा। कोई इदां दी कोई गलबात नहीं है, बहुत वधिया बात। इदां दी कोई गल ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं नहीं, कोई गल नहीं। इदां दी कोई ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ, हाँ जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ 150 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸੰਦੋਲੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਹੈਡ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੀਜੀਐਮ ਐਚਆਰ
HR ਹੈਡ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ 58 ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਐਵਰ ਇਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਕੋਲ ਗਏ। ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਾਨਣੀय ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਟੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਰੋਜ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਪਰਸਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਨੋਟਿਸ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ, ਲੈਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ। ਜੋ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਕਾਫੀ ਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 150 ਦੇ 150 ਟੋਟਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਐਸ ਪਰ ਐਕਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ 93 ਕੱਢੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 100 ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਬਮਿਟਡ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਣੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਟਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਲੈਟ ਮੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਆਸਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 99 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 93 ਹਾਂ 99 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਸਾਨੂੰ 20% ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਬੋਨਸ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਸ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਲਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਲਾਸ। ਬਟ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਬੋਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਉਹ ਦੇਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਸ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ EMPLOYEE ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਮਸਟ ਬੀ ਸਟਾਪ। ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਰ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਨੋ ਲੈਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 150 ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ 100 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ 100 ਮੀਟਰਸ। ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜੋ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 100 ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਸਟਾਪ ਐਨੀ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ HR ਹੈਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ HR ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ HR ਹੈਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣੀ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਨਬੀਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਚ ਹੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਲੇਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਆਪਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਲਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। हाँ जी सर, की मीटिंग हुई है जी आज अंदर थोड़ी? मीटिंग यही हुई है जी कि वो बोलते हैं कि हम कानून के दायरे में रहते हैं, सब कुछ किया है, और जो हमारी मैनेजमेंट है मानती है। कानून तो मजदूरों के लिए भी है, और लेकिन ये तो अपना ही कानून जो इन्होंने बनाया हुआ उसी कानून की दवाई दी जा रही है। इन्होंने यही बोला कि हम अपनी मैनेजमेंट को पूछ के बताएंगे, और फिर पूछ कर यही बता देंगे कि नहीं मान रहे। इनका हर बार का यही होता है। आज SHO साहब के साथ क्या बात हुआ? SHO साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं ज़रूर कोई बात निकालूंगा इनसे मिलके, उनको बोल के मैं ज़रूर कोई इसका हल दूँगा। जैसे आप बता रहे हो कि आगे इन्होंने ऐसे ही करते हैं, ये इन्होंने ऐसे, तो आगे आप अगर नहीं हुआ तो आगे आपकी कार्रवाई क्या होगी? हमारी कार्रवाई क्या है, हमने धरना लगाया हुआ है, धरना लगाया हुआ, धरने में बैठेंगे। पहले हम 50-60 बैठे थे, अब 700-800 बैठेंगे। सुनने में आया किसान जत्थेबंदियां आपका साथ दे रही हैं? हाँ, तैयार है, हमारा साथ देने को सभी तैयार हैं। जितनी पंजाब की यूनियन है सब हमारे साथ आने को तैयार हैं, लेकिन हम इतना माहौल ज़्यादा ख़राब करना नहीं चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जितने भाइयों को निकाला है उनको ले ले, और हम पहले की तरह अनुशासन में रहकर काम करें।